here we have chapter number 7, 7.3 का the uprising of 1857 cause and consequence, suppression and consequence, ये तीनों पार्ट है. तो let us read ये क्या है, क्यों है और कैसा है. 1857, the revolt of 1857 started on 10th May when the company's Indian soldiers at Meerut rebelled, called the Sepoy Mutiny by the British. It is now recognized as the first war of independence against the British rulers. So ये chapter number 17 का हमारा टॉपिक है 7.3, the uprising of 1857 cause, suppression and consequences. ठीक है. The revolt of 1857 started on 10th May when the company's Indian soldiers at Meerut rebelled, called the Sepoy Mutiny by the British. It is now recognized as the first war of independence against the British rulers. British rulers के against जो हमारा first war, उसको इस तरीके से नहीं किया जो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने किया. The Sepoy Mutiny by the British. Indian soldiers killed their European officers को kill किया and marched towards the Delhi की तरफ बढ़े. They entered the Red Fort and proclaimed the aged and powerless Mughal Empire Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India. जब बहादुर शाह जफर एम्परर ऑफ इंडिया, तो उस वक्त हमने यूरोपियन ऑफिसर्स को हमने किल किया और हम लोग मार्च टुवर्ड्स द दिल्ली और हम लोग रेड फोर्ट में गए. This rebellion was the major anti-colonial movement against the aggressive imperialist policies of British. In fact, it was an economic, political, social and struggle against the British rule. ये सभी तरीके से, ना सिर्फ politically, ये तीनों तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से भी, पॉलिटिकली भी एंड सोशली भी हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया कि हम लोग ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट खड़े रहे, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट खड़े रहे. This served outburst of anger and discontent shook the foundation of colonial rule in large part of India. ठीक है. We will now study the cause of dissatisfaction among the Indian people which made them rebel against the British rule. ठीक है. क्या क्या कॉज थे, ये तीनों अलग अलग तरीके से हमें मिले हुए हैं, पॉलिटिकल वे, सोशली एंड इकोनॉमिकली. किस तरीके से हमने सफर किया, कितना हमने स्ट्रगल किया उन सभी ब्रिटिश रूल्स के टाइम में. पॉलिटिकल कॉज क्या था? द नेचर ऑफ कॉलोनियल एक्सपांशन थ्रू एनेक्सेशन बिकेम अ मेजर सोर्स ऑफ discontent among the Indian rulers. British wanted to conquer the land and collect as much as wealth for England as they could. वो लोग सिर्फ, उनका मेन एम इतना ही था कि वो जितना हो सके उतना ज्यादा किसी न किसी तरीके से लैंड को कंक्वायर करे और बहुत ज्यादा से ज्यादा वो वेल्थ कलेक्ट कर पाए फॉर इंग्लैंड, जितना हो सके उतना ज्यादा. Their policy of annexation, called a doctrine of lapsi and subsidiary alliance, lead to the number of independent kingdoms being annexed to the British Empire. These were states that were enjoying British protection. अब ये कुछ स्टेट थे जो ब्रिटिश प्रोटेक्शन को मतलब उनको इस चीज का फायदा हो रहा था, ब्रिटिश लोगों का प्रोटेक्शन मिल रहा था. But the rulers had died without leaving a nature higher to the throne. As a result, their adopted sons could now no longer legally inherit the property of receive the pension which was granted to them by the British. अब वो लोग ज्यादा टाइम तक वो चीज को उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. ठीक है. जो भी पेंशन मिला करती थी और रिसीव द पेंशन which was granted to them by the British. ब्रिटिश लोगों ने जो उनको पेंशन ग्रांट की थी वो भी अब ज्यादा नहीं रहा. In this way, Lord Dalhousie annexed the Maratha states of Satara, Nagpur, Jhansi and several other minor kingdoms. On the death of Bajirao, the pension granted to him was abolished and the claim of his adopted son Nana Sahib to receive this pension was denied to him. मतलब अब उनके बाद नाना साहब को ये जो पेंशन मिलने वाली थी तो वो उन्हें डिनाइड हो गई, अब ये उन्हें नहीं मिलेगी. To receive this pension was denied to him.
This interference by the East India Company was disliked by many Indian rulers. तो ये जो इंटरफेरेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये बहुत से लोगों को, जो इंडियन लोग थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, ये डिसलाइक किया। हर एक इंडियन ने, बहुत सारे इंडियंस ने इसे डिसलाइक किया। Before the policy of doctrine of lapse, the Indian ruler had a right to adopt and hire to his throne even if he was childless. But now they had to take prior consent from the British. The policy of annexation affected not only the rulers but affected all those who were dependent upon them, namely soldiers, craft people, and also even the nobles. मतलब ये सारी पॉलिसीज तो थी, the policy of annexation affected not only the rulers but affected all those who were dependent upon the, mainly on soldiers, craft people and even the nobles. इन सारे लोगों के साथ जो डिपेंडेंट हुए करते थे, उनके फैमिली मेंबर्स, वो खुद, तो ये सब भी ये सारी ये पॉलिसीज की वजह से अफेक्ट हो रहे थे। उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। Even the traditional scholarly and priestly classes lost their patron which they were getting from these rulers. Thousands of zamindars, nobles and polygarchs lost control over their lands and its revenue. बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी खुद की लैंड के ऊपर से उनका हक हट गया था, वो उनको उस लैंड के ऊपर से जो रेवेन्यू मिलता था वो भी अब उन्हें नहीं मिलता है। The annexation of Awadh on the ground of misgovernment was also resented by the Nawab, who was loyal to the British. No alternative jobs were provided to the people who lost their jobs when the British took over the Awadh. Even the peasant has to pay higher taxes and additional land revenue. अब जो लोगों को जॉब पर से निकाल दिया जाता था, तो उन्हें और कोई जॉब भी नहीं दी जाती थी, और उसके साथ में अब उनको उनकी ही जमीन के कुछ रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा था। इंस्टेंट जो पीसेंट थे, उन लोग के बहुत ज्यादा हाई जो पेमेंट टैक्सेस जो था वो उन्हें पे करना पड़ रहा था, एंड एडिशनल रेवेन्यू भी, लैंड रेवेन्यू भी पे करना पड़ता था। द कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश in the basic way of living, traditional beliefs, values and norms was seen by the mass as a threat to their religion. The British administrators gradually become arrogant and gulf between them and the people wanted. अब ये सारी हमारी beliefs, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, नॉर्म्स थी, हमारे जो रिलीजियस तौर तरीके थे, उन सबको बहुत ज्यादा हार्म, यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एक जाकर थ्रेड भी हो गया था। द रिलीजन, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रेजुअली बिकम एरोगेंट। अब वो बहुत एरोगेंट होते जा रहे थे, जो भी ये चीजें को संभालते थे, जो भी उनके हेड हुआ करते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, अब वो उन लोगों पे, इंडियन पीपल्स पे बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। ये हमने जो भी देखा वो सारी की सारी चीजें पॉलिटिकल कॉज का पार्ट in this topic। हमने देखा political cause। Now let us move to economic cause। Political, B1 is economic। Another important cause of revolt was the disruption of the traditional Indian economy and its subordination to the British economy। The British had come to trade with India but soon decided to exploit and impoverish the country। They tried to take away as much as wealth and raw material from here as they could। The Britishers kept high posts and salaries for themselves। They used political control to increase their trade as well as export and import of foreign goods। All means were used to drain India of her wealth। Indian economy now suffered under the British policies since they worked against the interest of Indian trade and industry। Indian handicraft completely collapsed। ठीक है। सो अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जितना हो सके उतना ज्यादा उन लोगों ने यहाँ की वेल्थ, यहाँ का रॉ मटेरियल लेने का ट्राई किया, जितना एज मच एज दे कैन, इतना पहले तो वो ट्रेड करने के लिए हमारे साथ है, बट इन आफ्टर सम टाइम उन लोगों ने क्या किया, दे ट्राई टू टेक अवे एज मच एज वेल्थ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर एज दे कुड। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा सकते हैं उतना ज्यादा वो ले गए। द ब्रिटिशर्स केप्ट हाई पोस्ट
एंड सैलरीज फॉर देमसेल्फ, वो खुद के लिए क्या करते थे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट रखा करते थे और ज्यादा पे उनके खुद के पर्संस के लिए रखा करते थे। They use political control to increase the trade as well as export and import in the foreign goods। और खुद का कंट्रोल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी उन्हें रखा हुआ था कि कितना ज्यादा वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे भी उन्होंने पूरा जितनी भी पॉलिसीज थी वो उनके बेनिफिट के लिए रखी हुई थी। All means were used to drain India of her wealth। Indian economy now suffered under the British policies since they worked against the interest of Indian trade and industry। तो अब इंडियन जो लोग थे, इंडियन इकोनॉमी जो थी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी अंडर द ब्रिटिश पॉलिसीज। जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज थी, इन लोग के इस तरीके के बिहेवियर के कारण बहुत सारे इंडियन पीपल्स थे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे और इनके खुद के ट्रेड नहीं चल रहे थे। फिर अब इंडियन लोगों ने खुद के इंटरेस्ट के लिए अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट कंप्लीटली कोलैप्स। अब जब ये सिचुएशन आई कि हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गया था। The craftsmen who received loyal patrons were improvised when the states were annexed। They could not compete with the British factory-made products where machines were used। तो ब्रिटिश लोगों की कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे। They could not compete with the British factory-made products। ब्रिटिश लोगों के जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स थे वो लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेकर फैक्ट्री में मशीन्स में वो प्रोडक्ट, तो उसकी अच्छी फिनिशिंग, उसका अच्छा पॉलिश मिलता था, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता था। इंस्टेंट क्या हमारा क्या हुआ करता था, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट ज्यादा हुआ करता था, तो उसकी इतनी ज्यादा जो वर्क हुआ करता था इतना परफेक्ट नहीं हुआ करता था। It made India into an excellent consumer of British goods and a rich supplier of raw material for the industries in England। The British sold cheap machines and made clothes in India, which destroyed the Indian cottage industry। अब वो machine made clothes जो थे वो उन्हें बेचा करते थे, जिसकी वजह से हमारा इंडियन कॉटेज जो इंडस्ट्री था वो कम होता जा रहा था, डिस्ट्रॉय ही होने लगा था, राइट। तो वो लोग मशीन मेड क्लोथ्स को बेचा करते थे। इट आल्सो लेफ्ट मिलियंस ऑफ क्राफ्ट्समैन अनएम्प्लॉयड। इसकी वजह से बहुत सारे क्राफ्टमैन जो थे वो लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे। The British also sent raw material to England for the factories there। This left little for the Indian weavers। The Britishers also imposed heavy duties on Indian made goods। Indian made goods, now they could reap huge profits as there were no competition for the goods। Thus the British drained India for her wealth and her natural resources। ठीक है, तो ये लोग यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजा करते थे, वहां से मशीन्स में फिनिश गुड्स बनवा कर यहाँ पे मंगवाते थे, जिसकी वजह से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट करने वाले क्राफ्टमैन भी जो थे वो भी अनएम्प्लॉयड होने लगे थे। तो हमारा इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सारा का सारा प्रॉफिट उन्हीं का हो रहा था। इम्पोज्ड हैवी ड्यूटीज, और इंस्टेंट वो क्या करते थे, इस पे हैवी ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा था उस पे हैवी ड्यूटीज भी लगाते थे, जिसकी वजह से इंडियन मेड गुड्स जो थे उनको बहुत ज्यादा सामने पे करना पड़ रहा था। नाउ दे कुड रेप ह्यूज प्रॉफिट एज देयर वाज नो कंपटीशन फॉर देयर गुड्स। और अब कोई कंपटीशन की तरह नहीं रहा था, एवरीथिंग इज लाइक उन्हीं की प्रॉफिट में जा रहा था, वहां पे अब कंपटीशन जैसा कुछ नहीं रहा था। तो पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज जो थे, वेल्थ जो था वो उनके अंडर आ गया था। What other measures did the British take to exploit India? To buy raw material and sell their finished goods, they introduced steamship and railways। तो इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से चलाने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, स्टीम शिप्स भी स्टार्ट की, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। रेलवेज को स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह को रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए और वहां से फिनिश गुड्स को मंगवाने के लिए। The railways opened a vast market to the British and facilitated export of India raw material abroad। Indian raw material को abroad भेजने के लिए भी ये एक अच्छा माध्यम बन गया था। The railways connected the raw material producing areas with the exporting ports। As a result, British goods flooded the Indian market। But do you know that the railways played an important role in the national awakening of the country too? They let people and ideas come closer together, something that the British had never anticipated। In 1853, Dalhousie opened the first telegraphic line from Calcutta to Agra।
फर्स्ट टाइम 1853 में डलहौजी ने ये टेलीफोनिक लाइन को स्टार्ट किया फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पोस्टल सर्विस टू इंडिया, उन्होंने ही पोस्टल सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। सिंस लैंड वाज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम, उस वक्त भी लैंड एक मेजर सोर्स था रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। द ब्रिटिश थॉट ऑफ वेरियस मीन्स टू गेट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, डिफरेंट थॉट्स उनके माइंड में थे कि किसी न किसी तरीके से वो लैंड में से रेवेन्यू जनरेट करें, वो किसी भी तरीके से हो, वेदर उस पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर या फिर उसके ऊपर कोई फैक्ट्री प्लान कर उसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर उसे बेचकर, तो किसी तरीके से उस लैंड के ऊपर से रेवेन्यू जनरेट करने के डिफरेंट आइडियाज उनके पास थे। द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ intensifying the land revenue demand to lead to the large number of peasants losing their land to revenue farmers, traders and money lenders. This was done through the Royalty and the Mahalwari system. Permanent settlement of Bengal, Bihar and Orissa did not recognize this hereditary rights of peasants on land. On the other hand, if they failed to pay 10th and 11th of the entire produce, their property could be sold off. अगर ये लैंड उनको दी जाती है और वो लैंड पे अगर वो प्रॉपर टाइम टू टाइम 10th and 11th ऑफ एंटायर प्रोड्यूस वो अगर इसका पे न करे तो वो लैंड भी उनके पास से चली जा सकती है। Their property could be sold, उसको बेच दी जा सकती है। To prevent this situation, the peasant often borrowed money from the money lenders at a higher rate of interest. तो अब इस चीज को रोकने के लिए कि उनकी जमीन ना चली जाए, इस वजह से वो क्या करते थे, गरीब लोग जो होते थे वो लोगों के पास से ब्याज के ऊपर पैसे लिया करते थे ऑन द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनके पास से पैसे लेकर उनको वो पे करते थे। तो डे आफ्टर डे कुछ टाइम के बाद वो डेब्ट में ही जा रहे थे। समटाइम्स दे इवन सोल्ड देयर प्रॉपर्टी टू द मनी लेंडर, और बहुत से बार वो अपनी लैंड जो थी वो भी सोल्ड कर दिए, बेच दिया करते थे, उनकी प्रॉपर्टी भी बेच दिया करते थे कि वो मनी लेंडर्स जो थे उनकी जो उनको पैसे पे कर रहे हैं उनको देने के लिए। When even the official harassed the peasant who dared not seek justice at a court for fear for further harassment, the new class of zamindars that were created by the British became their political alliance. They supported them in times of need and acted as buffers between the British and the people. Some of them even supported the British against the freedom movement. The economic decline of peasantry and artisans were reflected in 12 major and numerous minor famines from 1770 to 1857. All this factor helped to spread an anti-British feeling which ultimately culminated in the revolt of 1857. किसी न किसी तरीके से ये सब ब्रिटिश लोगों के प्रॉफिट के लिए हो रहा था। वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से रख रहे थे जिसकी वजह से इंडियन पीपल जो है वो किसी न डेब्ट में जाता रहे और ये लोग प्रॉफिट में रहते रहे। हर एक पॉलिसी वो इसी तरीके से प्लान करते थे, जैसे कि ऊपर हमें बताया गया था, लाइक दे पुट देयर हाई पोस्टेज और हाई सैलरीज वो उनकी साइड रखते थे और लो जो नॉर्मल पोस्ट थी वो इंडियन पीपल्स के लिए रखते थे और लो वेजेस जो थे वो उनको पे करते थे। किसी न किसी तरीके से ज्यादा वेल्थ कलेक्ट करना, उसे इंग्लैंड भेजना, वहां से रॉ मटेरियल बेचकर वहां से फिनिश गुड्स मंगाकर यहाँ पे वो हाई रेट में बेचना। तो किसी न किसी तरीके से वो खुद का प्रॉफिट कर ही रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी लॉस हो रहा था, रॉ मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, तो इस वजह से इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी थी वो डल होती जा रही थी। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट। सो हियर थर्ड पॉइंट हमने इकोनॉमिकल सोशल दोनों पॉइंट देखे। सोशल एंड रिलीजियस कॉस्ट क्या रहे उस वक्त। द ब्रिटिश वर नॉट वेरी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ वास्ट मास ऑफ इंडियन पीपल। अब ब्रिटिश लोगों के लिए ये मास जो हमारा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी, इन लोगों की फीलिंग्स को समझने के लिए कोई जगह नहीं थी। राइट, सोशल रिफॉर्म्स अगेंस्ट सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन मेड मैनी पीपल अनहैप्पी। अब इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग अनहैप्पी थे। राइट, कि जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, बट इंस्टेड इससे कुछ अगेंस्ट ही था, तो वो इस वजह से लोग अनहैप्पी थे। विद एन ऑब्जेक्टिव to convert people, the Christian missionaries opened schools and colleges. ठीक है,
स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी ओपन किए कि कन्वर्ट किए जाए लोगों को क्रिश्चियन, जो ये होता है क्रिश्चियंस वे में चेंज करने के लिए, क्रिश्चियंस करने के लिए. दे ऑल्सो नीडेड अ पॉपुलेशन which was educated and modern enough to buy their goods, but not enough to provide detrimental to the British interest. मतलब वो ये भी चाहते थे कि लोग पढ़े लिखे बने, कि वो पढ़े लिखे बनेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स को वो परचेस कर पाएंगे, बट इतना भी ज़्यादा ना पढ़े कि उनके खुद के लिए वो हार्मफुल रहे, राइट. उनके खुद का इंटरेस्ट ऑफ उनको वो प्रॉफिट इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी ना हो जाए कि उनको खुद का ही प्रॉफिट के अगेंस्ट जो इंडियन पीपल है वो खड़े रहे, राइट. उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उनका लॉस नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनका प्रॉफिट, उनका इंटरेस्ट बना रहे. It made the people believe that the government was in a collusion with the missionaries to eradicate the religion and convert them to Christianity. The passing of Act of 1850 converts to Christianity inherited terrestrial property. So after economic and social, let us move to social and religious cause. So the British were not very sensitive to the feelings of vast mass of Indian people. Social reforms against sati, female infanticide, widow remarriage and education of women made many people unhappy. ठीक है. अब जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे इंडियन पॉपुलेशन की जो फीलिंग्स हैं उनको समझ नहीं पा रहे थे, और इंडियन लोग जो थे वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी थे. विडो रीमैरेज होना, एजुकेशन ऑफ वुमेन जो था, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था, सती सिस्टम जो था, ये सारी चीज़ों से जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी. विद एन ऑब्जेक्टिव टू कन्वर्ट पीपल, द क्रिश्चियन मिशनरीज ओपन स्कूल्स एंड कॉलेज. They also needed a population which was educated and modern enough to buy their goods, but not enough to provide determined to the British interest. अब ये लोग चाहते थे कि इंडियन पीपल्स जो है वो एजुकेटेड बने, इतने एजुकेटेड ही बने जितने कि वो लोग एक प्रोडक्ट को समझ पाए, उनकी प्रोडक्ट्स को वो परचेज करें. ठीक है, तो ये उनका प्रॉफिट देखकर उन्होंने कि लोगों को एजुकेटेड बनाने का सोचा, बट इतने ज़्यादा भी एजुकेटेड न बने जिसकी वजह से उनको खुद को हार्म हो, उनकी खुद का इंटरेस्ट को लॉस हो, उनको कोई उनके एजुकेटेड होने की वजह से इनको कोई इसी तरह का लॉस हो, इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी ना हो. दे ऑल्सो नीडेड अ पॉपुलेशन विच वाज एजुकेटेड, मॉडर्न इनफ, इतनी मॉडर्न भी हो कि उनके प्रोडक्ट बाय करें, बट नॉट इनफ टू प्रोवाइड डिटरमिनेंटल टू द ब्रिटिश इंटरेस्ट. इट मेड द people believe that government was in collusion with the missionaries to eradicate their religious and convert them to Christianity. Christianity में भी convert करने के लिए सोचा. The passing of Act 21 of 1850 enabled converts to the Christianity inherited ancestral property. The new law was naturally interpreted as a concession to Christian convert, which further created anxiety and fear among the people. अभी इस वजह से to convert the people into Christian जो धर्म था उसमें, तो इसकी वजह से लोग anxiety and fear लोगों में बैठ गया था. The religious statements of sepoys were heard in 1806 in the Madras Presidency. The Hindus were asked to remove their caste marks from their forehead, and the Muslims were asked to trim their beards. Through the Sepoy uprising was put down, it was evident that the British neither understood nor cared for the Indian soldiers. यही चीज़ों की वजह से उन लोगों ने कभी इंडियन जो सोल्जर्स थे उनका कभी उनको समझ ना पाए और ना कभी उनके बारे में उनको इतना केयर किया, राइट. इवन मुस्लिम जो भी मुस्लिम्स थे उन्हें भी उन लोगों ने टू ट्रिम देयर बियर्ड को वो ट्रिम करके रखे, ऐसा कहा. इवन फॉर हिंदूज आल्सो टू रिमूव देयर कास्ट मार्क्स, जो कास्ट के मार्क्स होते हैं उन्हें भी वो रिमूव करने की बात कर रहे थे. The loyalty of the sepoys were further determined by certain military reforms which required them to serve overseas. This outgrew their religious feelings. They had an aversion to overseas services and travel across ocean meant loss of caste for them. ये सारा एक तरीके का loss of caste for them. They had an aversion to overseas services.
as travel across ocean meant loss of caste of them। ये एक तरीके का लॉस इन्होंने बताया। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें सोशल रिलीजियस, तो इसमें उन्होंने बात की थी कि उन लोगों को क्रिश्चियनिटी दिया जाए, राइट, दूसरे सारे कास्ट को छोड़कर। फिर एक एक्ट उन्होंने 21 का ऑफ 1850 enabled to convert the Christianity inherited terrestrial property। The new law was naturally interpreted। फिर यहाँ पे इन्होंने बात की हिंदू एंड मुस्लिम्स की, कि हिंदू लोग जो उनके कास्ट मार्क्स हैं उन्हें निकाले, फिर यहाँ पे बियर्ड की ट्रिम कर कर रखे, ठीक है। तो दिस इज ऑल। और उन्होंने ना तो कभी ब्रिटिश नाइदर अंडरस्टूड एंड नॉर केयर फॉर द इंडियन सोल्जर, और उन्होंने कभी इंडियन सोल्जर्स के बारे में सोचा भी नहीं था। दिस ऑल अबाउट, दिस ऑल कम्स अंडर द सोशल एंड रिलीजियस कॉज। ये सारी चीजें हमने फेस की एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। Here we have another point, discontent in army। The soldiers in the East India Company's army came from peasant families which were deeply affected by the government's policy। Indian soldiers were not given post above that the subedars। Some sepoys wanted special batal allowance if sent on overseas duty। Sometimes they were paid, but most of time they were not। Therefore they started distrusting on their officers। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो मोस्ट ऑफ ऐसे सोल्जर्स थे जो पीशन फैमिलीज में से बिलोंग करके आते थे, और उसकी वजह से वो लोग क्या करते थे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज से बहुत दबे हुए थे, राइट। बहुत सी बार इन लोगों को अच्छी पोस्ट पे भी नहीं जाने देते हैं, इन लोगों को सूबेदार तक की एक पोस्ट इससे नीचे ही रखते थे, इससे ज्यादा ऊपर उनको पोस्ट कभी देते नहीं थे। Some sepoys wanted special battles and allowance if sent on overseas duties। ओवरसीज ड्यूटीज पे भेजते वक्त ये कुछ ज्यादा अलाउंस भी डिमांड करते थे, बट समटाइम्स इनको मिलती भी थी एंड समटाइम्स नॉट। देयरफॉर दे स्टार्टेड डिसट्रस्टिंग। इसकी वजह से क्या हो गया कि वो ट्रस्ट करना छोड़ दिया उन्होंने, उनके जो ऑफिसर्स थे तो उनके ऊपर उनका ट्रस्ट भी कम हो गया। Their intents contributed in their own way of the revolt of 1857। The soldiers had other grievances too। They were paid salaries less than their English counterparts। As a result, the morale of the Indian sepoy was very low। On the other hand, when the soldiers refused to cross the black water, that in oceans and seas because the religious forbade it, the British were ruthless on them। तो बहुत सी बार उन्होंने ये भी उनकी कंप्लेंट्स थी कि उनको जो उनके काउंटर पार्ट्स थे, इंग्लिश काउंटर पार्ट्स, उससे कंपेयर में बहुत कम पे किया जाता था। एज ए रिजल्ट उनका जो मोरल था वो भी डाउन हो रहा था, राइट। बहुत लो फील करते थे। एक दूसरी तरीके से अगर देखने जाए तो जब भी वो लोग ब्लैक वाटर में, ओशंस में या सीज में जाने के लिए ना बोलते थे बिकॉज ऑफ एनी रिलीजियस रीजन, तो उस वक्त ब्रिटिश लोग जो थे उनके ऊपर गलत तरीके से व्यवहार करते थे, उनको बहुत परेशान किया करते थे। रूथलेस ऑन देम, बहुत गलत व्यवहार करते थे उनके ऊपर, गलत तरीके से उनको रखा जाता था। जब भी वो किसी भी रिलीजियस रीजन से ब्लैक वाटर में, ओशन से, सीज में जाने के लिए अगर वो ना बोलते हैं तो